Hey guys, so now in this class we're going to start with a new chapter in biology, and that is improvement in food resources. Okay, this is the chapter. Now, as the heading of the chapter says, कहाँ हमें improve करना है, क्या improve करना है? So we have to improve all these food resources. Okay, we have to improve the food resources. Yes. So first of all, we people really hate food. We don't want to eat food, है ना? हमें तो घर का खाना, cabbage, spinach, okay, all these things we hate, but वही हम लोग के घर में बनाया जाता है ना? And we love to eat all these pizza, pasta, burger, French fries and so many things. But we hate all those foods जो हम लोग खाते हैं अपने घर पे, है ना? But we always get scolding कि भाई खाना खा लो कुछ खा लो, है ना? We always get scolding. Why we get scolding to eat food? So basically food provide us with energy. First thing is energy. Food provide us with energy. Whatever work we do, we used to sleep, we used to go to bed, we used to play, dance, we used to study, हम school जाते हैं. For all these activities, really, energy is required, and that is why we are always, scolds, means we always get scolding to eat food, है ना? हमको इसलिए डांट पड़ती क्योंकि हम खाना नहीं खाते हैं, और जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, right? So whatever things we do, whatever activities we do, for all these things we really need energy, and that energy is obtained from food, right? It also provide us with growth, right? Yes, so that's why we are always told to eat food. Now there are two sources of food. First is the plant source and second is the animal source. Means हमें दो source से कुछ खाना मिलता है. First is plant source. So whatever thing we used to eat, means spinach, cabbage, okay, एटा गार्ड वट एवर वी यूज टू ईट, जो भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स बाय एग्रीकल्चर. लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर को रोक दें, so we will not get anything to eat, right? So agriculture provide us with good fruits, crops, right? So that's why we all do agriculture, and even 70% of our country, 70% of our whole population is dependent on agriculture for the food, right? So yes, all those crops, जितनी भी सब्जियां, कोई fruits खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, all these things we obtain from plants only by agriculture. And when we stop this agriculture, हमें कुछ नहीं मिलेगा खाने को, right? So that's why we are always told to do agriculture. And the second source is animal source. Milk, its product, meat, fish, egg, all these things we obtain from animals, right? By animal husbandry. Animal husbandry is taking care of that animal so that they can provide us with milk, meat, fleshes and all these things, right? So basically there are two sources. First is plant source, second is animal source. All those things like crops, fruits, right? All these things we obtain from plants by agriculture, okay? And the second source is animals, right? All those milk, its product, meat, egg, fish, all these things we obtain from animal by animal husbandry. Is much clear? Sure? Yes. Now we know that India is highly populated. बहुत लोग हैं हमारी country में, right? Earlier we used to study that China is highly populated, but now even India has crossed China in population, in terms of population, right? हमारे country में अब China से भी ज़्यादा लोग हैं, right? So अब उनके लिए we are simply cutting down all those trees, forest, and we are making homes, big homes, industries, buildings, flats, है ना? हम plants को काट दे रहे,
हम सिंपली जितने भी प्लांट है सबको उड़ा दे रहे हैं और उनके जगह हम बड़े बड़े घर बना दे रहे हैं, बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज खोल दे रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, राइट. इन दैट केस हमारे पास जो लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो फील्ड है, जो लैंड है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट. द लैंड इज लेस बट द डिमांड इज मोर. अब जब पीपल बहुत ज़्यादा रहेंगे देयर डिमांड विल ऑल्सो बी हाई. उन्हें भी तो खाना चाहिए, है ना. अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खा के सोएंगे, वो लोग बिना खाए सोएंगे, नहीं. दे ऑल्सो नीड फूड टू ईट, राइट. सो एज द डिमांड इंक्रीज बट द लैंड इज फिक्स्ड, राइट. लैंड इंक्रीज नहीं कर रहा है एंड दैट इज वाई वी आर टोल्ड टू यूज HYV सीड्स सो दैट कि उसी लैंड में वी कैन हैव मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. उसी लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो सके, ठीक है. इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल करें सो दैट कि उसी लैंड पर, एग्जाम्पल अगर नहीं है लैंड कुछ यहाँ पे, उसी लैंड पे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकें तो एक चीज़ क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. बिकॉज डिमांड इज हाई, पीपल ऑल वॉन्ट टू ईट फूड्स बट लैंड इज लेस. सो वी आर यूजिंग HYV सीड सो दैट कि हम लोग का जो क्रॉप प्रोडक्शन रहे वो ज़्यादा रहे. अगर हम कोई एक लैंड है, अगर हम वहाँ पे नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल करें, इफ़ दैट सीड गिव्स अबाउट 1000 टन्स ऑफ ग्रेन्स, लेकिन अगर हम उसी लैंड पे HYV सीड्स का इस्तेमाल करें, अगर हम उसी जगह HYV सीड्स का इस्तेमाल करें, देन जो पहले 1000 टन्स ग्रेन्स देते थे वो हो सकता है 1200 दे या 1500 टन्स मिले. तो क्या हुआ यहाँ पे, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप की यील्ड ज़्यादा हुई, राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर टोल्ड टू यूज HYV सीड्स बट दीज सीड्स आर वेरी वेरी कॉस्टली. These cost an arms and a leg, so all those farmers cannot afford that, right. Yes, now we are going to study about few kranti, ठीक है. The first was green revolution, that was for agriculture. एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ग्रीन बोला किया गया था. और हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था, पहले हम ये जानते थे कि हमारी कंट्री पता है मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स बहुत कम होते थे हमारी कंट्री में. सो दैट्स वाई वी ऑल्सो developed those white revolution and that was for milk and its product. Then there was blue revolution and that was for fishes and all those animals who live in water, right. Yes, and then there was golden ones. तो गोल्डन वाला किसके लिए था, हनी एंड फ्रूट्स के लिए. देन देयर वाज सिल्वर, इट वाज फॉर एग्स, राइट. सो ऑल दीज वाज रेवोल्यूशंस जो हुए थे हमारी कंट्री में, ठीक है. यस, नाउ वी नो दैट. अब हमें क्या जानना है कि सीरियल्स में क्या क्या आते हैं, पल्सेस में क्या क्या आते हैं और ऑयल सीड्स में क्या क्या आते हैं. सो बेसिकली ऑल दोज राइस, wheat, maize, millets, all these things come under cereals, right. And when we talk about pulses, example gram, green gram, black gram, all these things come under pulses. And when we talk about oil seeds, example groundnut, sunflower, castor, right. So these comes under oil seeds, right. I hope till here it's crystal clear. Yes, now we know that the polar bears, right, the polar bears used to live in poles. अगर हम उनसे बोले कि भाई तुम थोड़ा सा आ जाओ वहाँ पे, हम लोग क्या आ जाओ, that animal cannot survive over here, क्योंकि उसका जो रहने देने का तरीका था, it's been changed there. क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी स्नोफॉल होती थी, बट यहाँ पे कुछ नहीं है. So that animal will simply die. It cannot survive over here, right. So similarly all kinds of crops cannot survive in all kinds of atmosphere, climates, right. उसके हिसाब से वहाँ पे climate होना चाहिए, temperature होना चाहिए, then only हम कोई एक crop को grow कर सकते हैं. कोई अगर कैक्टस है तो हम उसे
ये यहाँ पे भी होता है बट वो इतना सूटेबल नहीं होता है, because cactus has those long stems so that it can grab the water, है ना. वो कहाँ पे होते हैं, वो deserted area में basically all those cactus होते हैं. Now in this chapter we are going to see about 3 types of crops basically. First is kharif crops. These crops used to grow in rainy seasons and examples are wheat. Okay, the second types of crops is rabi crops. These crops are grown in winters, right? Yes, and the third types of crops is this zaid crops. These crops are grown in summers. The example is cucumber, sugarcane, right? Yes, so these are the examples of all 3 kinds of crops: kharif, rabi and zaid. I hope till here it's crystal clear, right? Now we're going to see about क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. ओके, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट के बारे में अब हमें पढ़ना है. सो बेसिकली दिस क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड इज इंट्रोडक्शन टू अ जीन. बट हम अभी इस क्लास में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज जब हम 2 वेराइटीज के बीच में करते हैं. ये होता क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इज म्यूल. हमने ये टर्म सुना है म्यूल. ये क्या होता है, एक एनिमल होता है. अगर हम कोई ऐसे एरिया में जाते हैं, कोई बहुत स्नो एरियाज में जाते हैं, तो वी ऑलवेज फाइंड दोज म्यूल्स ओवर देयर. हम उनके ऊपर बैठ जाते हैं और वो हमें ले चलता है. म्यूल जो होता है वो एक हाइब्रिड होता है. ये क्या होता है, सी हॉर्स जो कि बहुत बड़े होते हैं. हॉर्स जो रियल हॉर्स होते हैं, राइट, वो बड़े बड़े होते हैं. हॉर्स और जो वो होते हैं डंकीज होते हैं, राइट, जो डंकीज होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं, तो वो छोटे होते हैं. बट उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन को सहन कर पाते हैं, राइट. मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठा पाते हैं. सो हम हॉर्स का स्पर्म से लिए, डोंकी का ओवम लिए. जब दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया. सो अ न्यू टाइप ऑफ एनिमल इज फॉर्म्ड एंड दैट एनिमल इज नोन एज म्यूल. ओके, एंड दिस म्यूल हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द एनिमल्स. ओके, ये एक होता है हाइब्रिड. म्यूल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड. ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन से बने उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड. ओके, अब जो पहला टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 2 वेराइटीज के बीच में होता है. ठीक है, 2 वेराइटीज़ के बीच में होता है. अगर हमने क्या पढ़ता है, जो वो होता है, जो मैंगोज होता है, मैंगोज की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है ना. हमने क्या पढ़ा, ब्लैक रोज, ठीक है, सिल्वर नहीं होता, पिंक रोज, है ना, ऑल दीज थिंग्स. तो जब हम 2 रोज के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते तो एक नया टाइप का रोज मिलता है, उससे हम बोलेंगे हाइब्रिड. वो क्या हुआ, यहाँ पे जो उन दोनों की वेराइटीज़ थी दोनों सेम थी. अगर हम 2 मैंगोज के बीच में करें वो भी सेम, क्योंकि है तो दोनों मैंगोज ही, राइट. उनकी सिर्फ वेराइटी अलग है. एक है हमारा चौसा मैंगो और एक है हमारा कौन सा, शहरी एक होता है. हाँ, मान लीजिए अगर उन दोनों के बीच में कराए तो एक नया टाइप ऑफ जो मैंगो मिला वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइब्रिड. उसी तरह से अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग 2 रोज के बीच में कराए, रेड रोज और वाइट रोज के बीच में कराते हैं, रेड और वाइट, जब क्रॉस ब्रीडिंग कराए तो एक नया टाइप ऑफ रोज मिला जो कि ना ही तो रहेगा रेड ना ही रहेगा वाइट, वो दोनों रहेगा. दैट इज हाइब्रिड. ठीक है, और जो सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हमारे एक ही ग्रुप के स्पीशीज में. ग्रुप कैसा, जैसे अगर हम बात करते हैं लायन और टाइगर, ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, स्पीशीज अलग अलग है, ग्रुप क्या है, सेम है. तो अगर हम एक ही ग्रुप के एनिमल से उन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करा दी है, अगर हम लायन का और टाइगर का क्रॉस ब्रीडिंग करा दी है, लायन का स्पर्म सेल, टाइगर का ओवम करा दे, तो क्या मिला, लाइगर. अगर हम टाइगर का स्पर्म लिए और लायन का ओवम लिए तो क्या मिला, टाइगन मिला, टाइगन. ओके, तो 2 तरह के एनिमल्स मिले. अगर हम लायन का स्पर्म लिए, टाइगर का ओवम लिए, तो हमें क्या मिला, लाइगर.
लेकिन अगर हम टाइगर का स्पर्म लिए और लायन का ओवम लिए और दोनों को क्रॉस ब्रीड करा दिए तो क्या मिला? टाइगॉन। टाइगॉन मिलता है, टाइगॉन। हाँ, ओके। नाउ अगर हम वही प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में कैसा होगा? प्लांट्स में होगा जैसे कि जो पटेटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, ये चार जो होते हैं ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो वो होता है ना, जो पटेटो होता है उसमें ऊपर ऐसे ऐसे होता है ग्रीन ग्रीन, जो वो होता है क्या कैप्सिकम उसमें भी होता है, ठीक है। तो इसलिए वो सब क्या है, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम पोटैटो का टोमेटो से क्रॉस ब्रीडिंग करा दिए तो क्या मिला हमें? पोमैटो। पोमैटो भी एक तरह का क्या होता है, वेजिटेबल होता है, जो हमने नहीं सुना है, नहीं देखा है, लेकिन होता है। यस, पोमैटो भी होता है, ठीक है। जब हम पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस ब्रीडिंग करा दिए तो क्या मिला? पोमैटो, ठीक है। जो वो पोमैटो है ये क्या है? हाइब्रिड है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, डोंट बी वरी एट ऑल। ओके, यस। अब जो थर्ड टाइप का है वो हम लोग अपने सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल हियर आई होप इट्स क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? फूड क्या होता है, फूड से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है, हम कोई भी काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने सोर्स पढ़े, दो सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, ठीक है। प्लांट सोर्स लाइक क्रॉप्स, फ्रूट्स, ये सब जो मिलता है ये कैसे मिलता है? प्लांट से मिलता है, बाय एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर जो सेकेंड सोर्स है वो होता है एनिमल सोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल एग, मीट, फिश, चिकन, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। यस, तो हम क्या करें इससे? हम क्या कर रहे हैं, जो ये एग, फिश, चिकन, मीट होता है, ठीक है, ये सब क्या है? ये एनिमल से मिलता है, बाय एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमको क्या करना है? हमें HYV सीड्स को ग्रो करना है कि हम लोग का उसी लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, राइट। यस। फिर हमने बात की थी उसकी, क्या बात की थी हमने? कुछ जैसे हमने बात की थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो कि एग्रीकल्चर के लिए होता है। ब्लू वाला फिशेस एंड ऑल दोज एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके लिए होता है। गोल्डन वाला होता है हमारा फ्रूट्स और हनीज के लिए। सिल्वर वाला होता है हमारे एग के लिए। तो इतने सारे हुए, ठीक है। उसके बाद हमने बात की 3 तरह के क्रॉप्स की। पहला क्रॉप होता है खरीफ क्रॉप, जो कि हमारे रेनी सीजन्स में ग्रो होता है, एग्जाम्पल है पैडी। सेकेंड क्रॉप होता है राबी क्रॉप्स, ठीक है। राबी क्रॉप कब ग्रो होता है? विंटर्स में। फिर आता है हमारा जैद क्रॉप, जो कि समर्स में ग्रो होता है, इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर, शुगर केन, ठीक है। ये सब पढ़ा। फिर हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन की। वो कैसे बनता है? जब हम 2 ऑर्गेनिजम्स का स्पर्म और एक का ओवम को क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। वो क्या होता है? उसे बोलते हैं हाइब्रिड। और आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट, एक हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में, एक गर्ल को बनाया गया है। गर्ल क्या, हाँ गर्ल ही बोलो, जो कि आर्टिफिशियली मेड की गई है। वही, हाँ, थोड़ा सा उसका भी फॉर्मेट सेम था। वो हम लोग की तरह बॉर्न नहीं हुई, उसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। वो हमारे पूरे वर्ल्ड में है कोई, ठीक है। मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ एक गर्ल ऐसी बनाई गई है जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई है। वो हम लोग की तरह बॉर्न नहीं हुई है, ठीक है। उससे भी कुछ बहुत सारे होते हैं ना केमिकल्स के थ्रू, और ये जो पढ़ रहे हैं मे बी उसी तरीके से बनाया गया हो। अभी कैसे होता है, कैसे हम स्पर्म से लेते हैं, ओवम लेते हैं, कैसे, ये सब हमें अभी नहीं समझ में आएगा, एंड विल ग्रो अप तभी आएगा। सो डोंट टेक टेंशन, इट्स easy, right? So now in the second class we are going to start with the third type of hybridization की variety, right? So till here, stay connected, keep learning, and thank you.